بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساتھیو السلام علیکم۔ ڈاکٹر محسن میگانا آپ کی خدمت میں حاضر ہے اپنے یوٹیوب چینل کی طرف سے۔ آج ہماری خوش بختی ہے کہ محترمہ ریحانہ قمر صاحبہ امریکہ میں مقیم ہیں، وہ یہاں تشریف لائی ہیں۔ وہ ہماری ہمسائیگی ٹوبہ میں رہتی ہیں، اور ان کی خاص بات یہ ہے کہ جہاں پہ ادب کو انہوں نے امریکہ میں روشناس اردو ادب کو باقی اپنی ساتھیوں کے ساتھ اور محفلوں میں روشناس کرایا ہے، وہاں پہ ٹوبہ جیسے شہر میں جہاں پہ ادبی ماحول نہ ہونے کے برابر تھا، وہاں پہ انہوں نے مشاعروں کو رواج دیا ہے۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی خدمت ہے۔ ایک تو آپ اپنے طور پہ بہت اچھے شاعر ہوں، شاعرہ ہوں، وہ الگ بات، لیکن اس طرح سے ادب کی ترویج کرنا جو ہے یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہوتی ہے، اور یہ کریڈٹ جو ہے اگر ٹوبہ میں جو ادبی ماحول بن رہا ہے وہ سارے کا سارا کریڈٹ جو ہے محترمہ ریحانہ قمر صاحبہ کو جاتا ہے۔ اور ہماری خوش بختی ہے کہ آج جھنگ وہ تشریف لائی ہیں میری دعوت پہ، اور آج ہماری وہ مہمان خصوصی ہیں۔ تو کچھ دوست ہمارے اکٹھے ہوئے ہیں انہیں ویلکم کہنے کے لیے، تو چھوٹے سے مشاعرے کا، چھوٹی سی محفل کا یہاں پہ میرے اپنے ہی کلینک میں اس کا انتظام کیا گیا ہے۔ تو ہمارے ساتھ جو ہے، اب آپ یہ دیکھیں کہ مشاعرہ اور اس میں سامعین نہ ہوں تو یہ بڑی عجیب سی بات ہوتی ہے کہ وہ شاعر ایک دوسرے کو داد دیتے رہیں اور داد دینے والا کوئی نہ ہو۔ تو ہماری خوش بختی ہے کہ آج ہمارے ساتھ سائیکالوجی کے بہت بڑا علم ہے، تو سائیکالوجسٹ جو ہیں اقصیٰ ارشد جو ہیں، اور محترمہ میمونہ ناز صاحبہ ہیں، وہ خاص طور پہ تشریف لائی ہیں۔ پروفیسر نوید اختر صاحبہ، امید ہے کہ آپ کچھ پڑھیں گی۔ یہ تو مجید امجد کے خاندان سے ان کا تعلق ہے، ابھی ان کے تاثرات ہم لیں گے ساتھ ساتھ ہی۔ تو بطور میزبان سب سے پہلے میں اپنا کلام پیش کرتا ہوں۔ یہی روایت جو ہے وہ مشاعروں کی ہوتی ہے کہ سب سے پہلے جو میزبان ہے وہ اپنا کلام پیش کرتا ہے۔ تو غزل پیش کرتا ہوں جی کہ جس کی خاطر ہے سفر میں رہے صحراؤں کے، جس کی خاطر ہیں سفر میں رہے صحراؤں کے، اس نے دیکھے ہی نہیں چھالے کبھی پاؤں کے۔ جس کی خاطر ہیں سفر میں رہے صحراؤں کے، اس نے دیکھے ہی نہیں چھالے کبھی پاؤں کے۔ اور دھوپ سے جن کو صدا میں نے بچائے رکھا، دھوپ سے جن کو صدا میں نے بچائے رکھا، معترف وہ تو رہے اور کسی چھاؤں کے۔ دھوپ سے جن کو صدا میں نے بچائے رکھا، معترف وہ تو رہے اور کسی چھاؤں کے۔ اور شعر دیکھیے گا کہ آزمائے گئے مجھ پہ تو بدل کر نسخے، آزمائے گئے مجھ پہ تو بدل کر نسخے، درد میرا نہ سمجھ آیا مسیحاؤں کے۔ آزمائے گئے مجھ پہ تو بدل کر نسخے، درد میرا نہ سمجھ آیا مسیحاؤں کے۔ اور میں ادا کرتا رہا جن کی امامت میں نماز، میں ادا کرتا رہا جن کی امامت میں نماز، آج مجھ پر کھلا مخبر ہیں کلیساؤں کے۔ جن کی امامت میں میں ادا کرتا رہا جن کی امامت میں نماز، آج مجھ پر کھلا مخبر ہیں کلیساؤں کے۔ اور شعر دیکھیے گا کہ میرے جیسا تو کوئی بات سمجھ پاتا نہیں،
मेरे जैसा तो कोई बात समझ पाता नहीं, दर्स गो शहर में होते तो हैं दानाओं के। मेरे जैसा तो कोई बात समझ पाता नहीं, दर्स गो शहर में होते तो हैं दानाओं के। और शेर देखिएगा कि क्या करूं दस्त शनासों पर है हैरत मुझको, क्या करूं दस्त शनासों पर है हैरत मुझको, और कोई बुझे कभी मतलब मेरी रेखाओं के। क्या करूं दस्त शनासों पे है हैरत मुझको, कोई बुझे तो कभी मतलब मेरी रेखाओं के। और मक्ता देखिएगा कि देख बाजार में, राना साहब आप देख बाजार में कीमत नहीं लगनी तेरी, देख बाजार में कीमत नहीं लगनी तेरी, अब कहाँ दौर है मोहसिन जी जुलेखाओं के। देख बाजार में कीमत नहीं लगनी तेरी, अब कहाँ दौर है मोहसिन जी जुलेखाओं के। और जिसकी खातिर हैं सफ़र में रहे सहराओं के, उसने देखे ही नहीं छाले कभी पाँव के। मोहतरम नाज़रीन, उम्मीद है आपको ये गज़ल पसंद आई होगी। तो आज इस मुशायरे में हमें एक और बहुत बड़ा एजाज़ हासिल है कि हमारे साथ डॉक्टर मोहम्मद उमर साहिल साहब हैं, और उनको ये दुनिया में एक नवेकला एजाज़ हासिल है कि एक ईद मुबारक का ईद मिलन मुशायरा था पाकिस्तान टेलीविज़न पे। तो उसमें ये पहली दफ़ा ये हुआ कि शायरों के अलावा वहाँ एक सामे था, वो भी कुर्सी पे बैठा था उनका, और वही सबको जज कर रहा था, और उसका नाम था डॉक्टर मोहम्मद उमर साहिल। ये एजाज़ पाकिस्तान टेलीविज़न की तारीख़ में कभी ये नहीं हुआ कि एक मुशायरा हो रहा हो और उसमें शायर हूँ और एक कुर्सी पे सामे भी बैठा हो, और वाहदहू सामे जो थे डॉक्टर लाइव बैठा हो और वो दाद दे रहा हो। तो आज डॉक्टर उमर साहिल साहब हमारे साथ हैं। तो अब मैं दरख्वास्त गुजार हूँ जनाब मुदस्सर हबीब जामी से, और मुदस्सर हबीब जामी साहब जो हैं आजकल वो नई नस्ल में, ख़ास तौर पे नई नस्ल में बहुत पॉपुलर हैं। इनकी शायरी जो है वो उनकी दिलों को छूती है, और ये मीडिया पे आजकल, क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है, जिन्होंने इनको देखा नहीं हुआ तो वो समझते हैं कोई उम्र से बहुत बड़ा शख्स होगा, लेकिन माशाअल्लाह नौजवानी में। और मैं ये साथ साथ ये भी अक्सर कहता हूँ कि अभी उनकी शादी नहीं हुई तो अभी उनकी गज़ल में इतना निखार है, जब हो जाएगी तो फिर पता नहीं क्या करेंगे। दो शेर के आप क्या ये हजूर कराए, दफन उनका गरूर कराए। आप सहरा के रहने वाले थे, आप दरिया अबूर कराए। आप सहरा के रहने वाले थे, आप दरिया अबूर कराए। उसकी आंखों में बेवफाई थी, उसकी आंखों में बेवफाई थी, बुझती आंखों को नूर कराया। दो तीन और शेर के आंख में अश्क लिए शहर से आते हुए लोग, आंख में अश्क लिए शहर से आते हुए लोग, रोने लगते हैं तेरे बारे बताते हुए लोग। आंख में अश्क लिए शहर से आते हुए लोग, रोने लगते हैं तेरे बारे बताते हुए लोग। सुबेदार हुए तुमको खबर है कि नहीं, सुबेदार हुए तुमको खबर है कि नहीं, शाम के वक्त दिए अपने बुझाते हुए लोग। और शेर है मैडम आपके लिए कि तूने एक बार मोहब्बत से पुकारा था कभी, तूने एक बार मोहब्बत से पुकारा था कभी, लौट आए हैं तेरे शहर से जाते हुए लोग। तूने एक बार मोहब्बत से पुकारा था कभी, लौट आए हैं तेरे शहर से जाते हुए लोग। गजल के चंद अशार के पानी पे मान करके मैं तन्हा खड़ा रहा, पानी पे मान करके मैं तन्हा खड़ा रहा,
दरिया का ध्यान करके मैं तन्हा खड़ा रहा। और मुमकिन है कोई आके मेरा हाल पूछ ले, मुमकिन है कोई आके मेरा हाल पूछ ले, ऐसा गुमान करके मैं तन्हा खड़ा रहा। बहुत शुक्रिया। मुमकिन है कोई आके मेरा हाल पूछ ले, ऐसा गुमान करके मैं तन्हा खड़ा रहा। बादल मेरे मिजाज से वाकिफ़ ना हो सके, बादल मेरे मिजाज से वाकिफ़ ना हो सके, गंगा को दान करके मैं तन्हा खड़ा रहा। बादल मेरे मिजाज से वाकिफ़ ना हो सके, गंगा को दान करके मैं तन्हा खड़ा रहा। आँखों में उसकी नज़्में मुसलसल पड़ी रहीं, आँखों में उसकी नज़्में मुसलसल पड़ी रहीं, मिसरा जवान करके मैं तन्हा खड़ा रहा। मिसरा जवान करके मैं तन्हा खड़ा रहा। आएगा एक दिन कभी सहरा में कैस भी, आएगा एक दिन कभी सहरा में कैस भी, मंजिल निशान करके मैं तन्हा खड़ा रहा। और मुझको मेरे मिजाज के सामे न मिल सके, मुझको मेरे मिजाज के सामे न मिल सके, किस्सा बयान करके मैं तन्हा खड़ा रहा। मुझको मेरे मिजाज के सामे न मिल सके, किस्सा बयान करके मैं तन्हा खड़ा रहा। अफसोस आज तू भी मेरे रूबरू नहीं, अफसोस आज तू भी मेरे रूबरू नहीं, खुद को जहान करके मैं तन्हा खड़ा रहा। बादल मेरे मिजाज से वाकिफ़ न हो सके, गंगा को दान करके मैं तन्हा खड़ा रहा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी, शुक्रिया, मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। नाजरीन, देखा आपने कि कैसा खूबसूरत कलाम जो है मुदस्सिर हबीब जामी ने पेश किया है। और ये जो नौजवान जो हैं हमारे झंग का मान है, पाकिस्तान का मान है, तो इसी से हमें बहुत सारी उम्मीदें वाबस्ता होती हैं कि हमारा अदब जो है वो इंशाअल्लाह, उर्दू अदब जो है वो बहुत और आगे जाएगा। और ख़ास तौर इंडिया में तो क्योंकि एक लहर चली हुई है कि वो कहते हैं कि वहाँ पे उर्दू की सर्वाइवल जो है, उर्दू का रहना मुश्किल हो रहा है। हालांकि आपने देखा है कि जो उनकी हिंदी फिल्में बनती हैं वो सारी उर्दू में होती हैं, लेकिन वो उसको हिंदी कहते हैं, तो वो एक किस्म का वो उर्दू पे भी कब्ज़ा करना चाहते हैं। लेकिन वहाँ पे रेख्ता और बहुत सी तंजीमें हैं जो उर्दू की सर्वाइवल के लिए, उर्दू के बचाव के लिए वो कोशिश कर रही हैं। तो अब झंग में एक बहुत हमारी ये खुशकिस्मती है कि यहाँ ख़वातीन भी बहुत अच्छा शेर कह रही हैं। तो मेरी मुराद जो है फ़रत ताहिर शाह साहिबा से है, और बहुत खूबसूरत उर्दू में भी और पंजाबी में भी वो अपना कलाम कहती हैं और दाद वसूल करती हैं। तो आज वो अपनी उर्दू गज़ल पेश कर रही हैं, तो उम्मीद है आप उससे ज़रूर लुत्फ़अंदोज़ होंगे और उनको दाद भी देंगे और बार बार सुनेंगे। मोहतरमा फ़रत ताहिर शाह साहिबा। बहुत शुक्रिया मोहसिन साहब, आपने इस खूबसूरत महफिल में शामिल होने का मौका दिया और एक हमारी बहुत प्यारी दोस्त और ख़ूबसूरत शख्सियत की मालिक रेहाना कमर साहिबा से मुलाकात का शर्फ हासिल हुआ। अल्लाह ताला इन्हें खुश रखे, शादो आबाद रखे। इनके लिए दो माये इनकी नज़र करती हूँ और उसके बाद एक गज़ल के चंद अशार। चोले नू ला तिल्ला, चोले नू ला तिल्ला, वेख के सजना नू अखा पढ़ दियां बिस्मिल्लाह। बहुत शुक्रिया। कोई विकदे फुल ले ले, कोई विकदे फुल ले ले, रब तौफीक देवे बंदा सज्जन नू मुल ले ले। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। अब मजीद अमजद साहब की ज़मीन में गज़ल के चंद अशार पेश करती हूँ। नारवा दिल पे मेरे कोई बात गुजरी है, नारवा दिल पे मेरे कोई बात गुजरी है, कि रोती हुई बरसात गुजरी है, तुमसे मिलकर भी दूर हैं तुमसे।
तुमसे मिलकर भी दूर हैं तुमसे कैसी अपनी हयात गुजरी है। बहुत शुक्रिया। तुमसे मिलकर भी दूर हैं तुमसे मिलकर भी दूर हैं तुमसे कैसी अपनी हयात गुजरी है। जिस कदर कर्ब से मैं गुजरी जिस कदर कर्ब से मैं गुजरी हूँ कब कहाँ किसकी ज़ात गुजरी है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आँख में अश्क दिल में सोग सा है, आँख में अश्क दिल में सोग सा है, दिल पे क्या वारदात गुजरी है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। दूर जब से हुए हो तुम मुझसे, दूर जब से हुए हो तुम मुझसे, बस कयामत की रात गुजरी है। बहुत अच्छे, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। रो रही है कहीं पे शहनाई, रो रही है कहीं पे शहनाई, फिर किसी की बारात गुजरी है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। रो रही है कहीं पे शहनाई, क्या बात है। रो रही है कहीं पे शहनाई, फिर किसी की बारात गुजरी है। जिसमें शामिल नहीं चाहत, जिसमें शामिल नहीं तेरी चाहत, जिसमें शामिल नहीं तेरी चाहत, उम्र वो बेसबात गुजरी है। बहुत अच्छे। नारवा दिल पे मेरे कोई बात गुजरी है कि रोती हुई बरसात गुजरी है। बहुत शुक्रिया जी, सलामत रहें। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने अभी फ़रहत ताहिर साहिबा को सुना, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत गज़ल कही थी, और इससे अंदाज़ा आपको हो गया होगा कि यहाँ की जो ख़वातीन हैं वो किसी दौर जो है मर्दों से पीछे नहीं हैं, मर्द शोरा से पीछे नहीं हैं, वो हर मैदान में पीछे नहीं हैं। लेकिन आज क्योंकि शायरी की बात हो रही है तो जंग जो है वो 1849 में वो ज़िला बना था, और अब हाल ये है कि लोग अक्सर पूछते हैं कि ये जंग जो है ये कहाँ पे वाक़या है, और बड़ा उससे दुख भी होता है। फिर बहरहाल हम हवाला जो देते हैं, हमने कहते हैं एक तो हीर का हवाला है, हीर रांझे का मज़ार यहाँ पे है, दूसरा डॉक्टर अब्दुल सलाम का जो नोबल प्राइज़ लिया था, और यहाँ पे 2 नोबल प्राइज़, दूसरा नोबल प्राइज़ हरगोबंद खुराना का था, और दोनों साइंस के हवाले से जाने जाते हैं। अदब की बात करें तो सबसे ऊपर जो है वो मजीद अमजद का नाम आता है, और लोग हैरान होते हैं कि एक ही मतलब शहर से शायद दुनिया में कोई मिसाल ना हो जहाँ पे 2 नोबल प्राइज़ हों। और फिर मजीद अमजद जो है, मैं हमेशा जिक्र करता हूँ कि हम जैसों पे शायरों पे एमफिल वगैरह हो रहे हैं या PhD हो रही है, तो मजीद अमजद को अपनी ज़िंदगी में जो है वो पज़ीराई क्यों नहीं मिली, ये अलमिया रहा है। अब जो PhD, बल्कि मैं कहता हूँ जो PhDयाँ हो रही हैं या एमफिल हो रहे हैं, अब उसको क्या इल्म वो कब्र में वो सो रहा है। ठीक है, उनके ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाले प्रोफेसर नवीद साहब हमारे साथ हैं आज, ये हमारे लिए एजाज़ है। हुकूमत ने भी अब उनको बाद अज़ मर्ग जो है वो सितारा इम्तियाज़ जो दिया है, तो चलें कुछ ना सही जंग के लिए ये, और मतलब तारुफ जो है वो जंग में जंग का जो है अदबी हवाले से जब मजीद अमजद का नाम लेते हैं तो फ़ौरन वो कहते हैं कि उससे बड़ा नाम नहीं है। शेर अब्दुल जाफरी, जाफर तक, इतने नाम हैं यहाँ पे अदब के हवाले से। एक दफ़ा अल्ताफ़ हसन कुरैशी साहब यहाँ पे कैडेट कॉलेज में मुशायरा था, तो वो कह रहे थे कि जिस तरह से दबिस्तान लखनऊ है, दबिस्तान दिल्ली है, इसी तरह से जो है वो हमें डिक्लेयर करके गए थे कि इसी तरह से ये दबिस्तान जंग है। तो ये हमारे लिए बड़ा एजाज़ है कि अल्ताफ़ हसन कुरैशी साहब वो उर्दू डाइजेस्ट के एडिटर हैं, आप जानते हैं कि, तो आज उसी खित्ते से एक नौजवान से होकर अब जवानी की तरफ आ चुके हैं, और जवानी से आके आगे मज़ीद सफ़र उनका जारी है। आमिर अब्दुल्ला साहब एक ऐसा नाम है कि वो 3 ज़बानों में शायरी कर रहे हैं, वो पंजाबी में, उर्दू में और अंग्रेज़ी में, और ट्राइलिंगुअल शायर मैं उनको कहता हूँ। वो
इंशाया भी लिखते हैं, तनकीद भी उन्होंने लिखी, लेकिन जो उन्होंने नाम कमाया है वो शायरी में नाम कमाया है। और उर्दू, पंजाबी, अंग्रेज़ी तीनों ज़बानों में लिखते हैं। और उनकी जो उर्दू शायरी है ख़ास तौर पे, उनका मुख्तलिफ 6-7 ज़बानों में, अंग्रेज़ी में, हिस्पानवी में, जो नाम ले लें 6-7 ज़बानों में उनकी शायरी के तराजम हो चुके हैं। और वो भी मुख्तलिफ शायरों की उर्दू में जो है वो शायरी को उन्होंने नज़्म किया है। तो अब चलते हैं आमिर अब्दुल्ला साहब, जो हमारा मान है, जंग का मान है, पूरे पाकिस्तान का मान है, आमिर अब्दुल्ला साहब। बहुत शुक्रगुज़ार हूँ जनाब डॉक्टर नियाज़ अली मोहसिन मेघाना का कि उन्होंने इस मोहब्बत के साथ तारुफ़ करवाया और मुझे ये मौका दिया कि सब दोस्तों के साथ मिल बैठूँ। और इंतहाई शुक्रगुज़ार हूँ आज की इस नशिस्त की मेहमान ख़ुसूसी मोहतरमा रेहाना कमर का भी कि उन्होंने जंग को इज़्ज़त बख्शी, वो यहाँ तशरीफ़ लाई। हमारे लिए बाइस एज़ाज़ है कि वो यहाँ तशरीफ़ लाई हैं। हम उनकी मोहब्बतों के मोतरफ़ तो हमेशा से हैं ही। इजाज़त हो जनाब सदर की तो मैं कुछ कलाम पेश करूँ। गज़ल के चंद अशार आप सबकी नज़र। हम सितारा नहीं, बजा नहीं हैं। हम सितारा नहीं, बजा नहीं हैं। हाँ, किसी का भी नक्श पा नहीं है। हम सितारा नहीं, बजा नहीं हैं। हाँ, किसी का भी नक्श पा नहीं है। खाक ने भी किया है खाक बदल। खाक ने भी किया है खाक बदल। आसमां का भी मसला नहीं है। और तर्क होना है चंद लम्हों में। तर्क होना है चंद लम्हों में। कोई दिलचस्प मशगला नहीं है। तर्क होना है चंद लम्हों में। कोई दिलचस्प मशगला नहीं है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। नहीं है, हमजा के साथ नहीं है। और कुछ तो बतला हमें कि क्या हैं हम। कुछ तो बतला हमें कि क्या हैं हम। कुछ तो बतला हमें कि क्या नहीं हैं। कुछ तो बतला हमें कि क्या हैं हम। कुछ तो बतला हमें कि क्या नहीं हैं। और चाप को फिर भी क्यों तरसते हैं। चाप को फिर भी क्यों तरसते हैं। हमके मतरूक रास्ता नहीं है। चाप को फिर भी क्यों तरसते हैं। हमके मतरूक रास्ता नहीं है। और इस तरफ हैं फसील के हम लोग। इस तरफ हैं फसील के हम लोग। उस तरफ से मगर जुदा नहीं हैं। उस तरफ से मगर जुदा नहीं हैं। और सिर्फ एक बूंद है हमारी तलब। सिर्फ एक बूंद है हमारी तलब। हम कोई दश्त प्यास का नहीं है। सिर्फ एक बूंद है हमारी तलब। हम कोई दश्त प्यास का नहीं है। और हम फ़कत तेरे रंग की तलछट। हम फ़कत तेरे रंग की तलछट। हम तेरा रूप दूसरा नहीं है। हम फ़कत तेरे रंग की तलछट। हम तेरा रूप दूसरा नहीं है। खाक ने भी किया है खाक बदल। आसमां का भी मसला नहीं है। सर बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अगर इजाज़त हो तो एक नज़्म। बहुत शुक्रिया। इन दिनों क्योंकि नसरी नज़्म का सिलसिला चल रहा है तो एक नसरी नज़्म आपकी समातों की नज़र।
हम देख नहीं पाते, देखे जाने की ख्वाहिश देखने नहीं देती हमें, देखे जाने की ख्वाहिश देखने नहीं देती हमें, मोहब्बत की नामालूद आँखें और नातवां दिलों की लुआब में फंसे किरमक जैसी बेबसी मजबूर किए रखती है सुनने पर वो चीख जिसे समातें सहार नहीं सकती, जो छर्रों के मानंद कायनात का सीना छलनी करते हुए गुजरती है। अगर हम एक बार छू कर देख लेते, अगर हम एक बार छू कर देख लेते किसी के लबों पर जमी यखबस्ता खामशी, तो शायद ख्वाहिश के मरकज़े में बुझी हुई राख से आग के मादूम हो जाने के राज तक पहुंच जाते। काश हमें खुशबू से इश्क करना सिखाया गया होता और फूल काश्त करना और बदरंगी को तहलील करके नए रंग खल्क करना, तो महीन होते हुए लिबादों में नीम बरहनगी से खजल हमारी रूहें भटकती न फिर रही होती, अपनी नाआसूदगी का बोझ उठाए हुए। रेत ऊंटों को निगल गई, रेवड़ मादूम हो गए, चरवाहे की छड़ी बादलों में अटकी रह गई, चंद कंकरियां जमा करके बनाई गई हमारी यादगारों की गुमशुदगी का नोहा किसी पंछी ने नहीं गाया। देखे जाने की ख्वाहिश देखने नहीं देती हमें। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने आमिर अब्दुल्ला को सुना, क्या खूबसूरत उनकी और शायरी और उनमें गहराई, जो ख़ास तौर पर नस्री नज़्म में आपने देखा कि और गज़ल में भी गहराई थी उनकी सोच में, तो आपको समझ आ गई और पता चल गया होगा कि क्यों मैंने उनकी इतनी तारीफ़ की थी। और आपके कलाम से, उनके कलाम सुन के आपको अंदाज़ा हो गया होगा। तो आज की नशस्त जिनके लिए सजाई गई है, उनका नाम रेहाना कमर साहिबा है। आप सबको मालूम है कि अमेरिका में वो मुकीम है और वहाँ पे अमेरिका में एक अदबी माहौल उन्होंने कायम किया है। और फिर पाकिस्तान में उनकी कोशिश है, जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि टोबाटेक सिंह में पिछले दिनों भी उन्होंने मुशायरा मुनक़िद करवाया था। तो वो उनका ज़िंदगी का एक वो कहते हैं लाइफ इज़ ब्यूटीफुल, उनका माटो है। उसमें ज़िंदगी जो है वो सही तौर पे अल्लाह ताला की ऐसी नेमत है, हम सबको उसको एंजॉय करना चाहिए, बल्कि शुक्र अदा करने के साथ साथ। तो ये उनकी मेहरबानी है कि वो अपनी अदब की पटारी को, शेरों की पटारी को लेके नगर नगर फिरती हैं। और हम जैसे सामीन जो हैं वो उनके इस अदब दोस्ती का और इस तरह उनके शेरों से लुत्फ़अंदोज़ होने का हमें मौका मिलता है। तो मैं बग़ैर किसी ताख़ीर के मुल्तमस हूँ मोहतरमा रेहाना कमर साहिबा से, जो आज की मेहमान ख़ुसूसी हैं इस नशस्त की, कि हमारी ये नशस्त जो है वो अकेडमी ऑफ आर्ट्स और साइंसेस की तरफ से मुनक़िद की जा रही है। और ये मेरे यूट्यूब चैनल की तरफ से आपके लिए तोहफ़ा है। तो अब मैं गुजारिश करता हूँ मोहतरमा रेहाना कमर साहिबा से कि वो अपना कलाम पेश करें। जी, बहुत शुक्रगुज़ार हूँ मैं आपकी तंज़ीम की, आपके तंज़ीम के साथियों की, डॉक्टर साहब मोहसिन मुगियाना साहब की। ज़िक्र चला है मजीद अमजद का, तो एक नज़्म पेश कर रही हूँ। मेरा ख्याल मैं किसी मुशायरे में पहली दफ़ा नज़्म पढ़ रही हूँ। इसका उन्वान है रॉन्ग एग्जिट। मगर ये ज़िंदगी की हाईवे पे चलने वाले कब समझते हैं, मगर ये ज़िंदगी की हाईवे पे चलने वाले कब समझते हैं, गलत एग्जिट से मुड़ जाएं तो मंजिल छूट जाती है। मगर ये ज़िंदगी की हाईवे पे चलने वाले कब समझते हैं, गलत एग्जिट से मुड़ जाएं तो मंजिल छूट जाती है।
मुझे भी एक एग्जिट पहले मुड़ने की अजियत है, मुझे भी एक एग्जिट पहले मुड़ने की अजियत है, मेरे पेशे नज़र भी एक अनदेखी मुसाफत है, यहाँ से लौटना या और मंजिल तक पहुँच, यहाँ से लौटना या और मंजिल तक पहुँच पाना मेरे बस में नहीं शायद। बहुत अच्छा। मैं फिर भी जा रही हूँ एक अनदेखे बियाबा में, मैं फिर भी जा रही हूँ एक अनदेखे बियाबा में, यहाँ कोई परिंदा है न साया है न पानी है, मैं फिर भी जा रही हूँ एक अनदेखे बियाबा में, यहाँ कोई परिंदा है न साया है न पानी है, न इसमें कोई एग्जिट की निशानी है, मसलसल राय गानी है। यहाँ किसको पुकारूं मैं कि अब अपनी सदा भी अपने कानों में नहीं आती, बला की सरगरानी है, यहाँ कोई नहीं शायद, मैं किससे रास्ता पूछूं, यहाँ तो 911 की सहूलत भी नहीं हासिल, ये हमारे 911 वहाँ, यहाँ तो 911 की सहूलत भी नहीं हासिल, मैं जिस दुनिया की हूँ उसकी हुकूमत भी नहीं हासिल, बता कुतबी सितारे ये कहाँ की बेसबाती है, ना मुझको चैन पड़ता है न मुझको नींद आती है, गलत एग्जिट से मुड़ जाएं तो मंजिल छूट जाती है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और 2-3 शेर अभी लेटेस्ट जो मेरी सूफीज़म पे एक सूफ़ी कलाम है कि तेरी फ़कीर मोहब्बत के संग हो गई हूँ, तेरी फ़कीर मोहब्बत के संग हो गई हूँ, मैं अपनी ज़ात के अंदर मलंग हो गई हूँ। तेरी फ़कीर मोहब्बत के संग हो गई हूँ, मैं अपनी ज़ात के अंदर मलंग हो गई हूँ, वो अपनी डोर से ऊंचा उड़ा रहा है मुझे, वो अपनी डोर से ऊंचा उड़ा रहा है मुझे, मैं उसके हाथ में आकर पतंग हो गई हूँ। और ये बात ध्यान में रखिएगा बात करते हुए, ये बात ध्यान में रखिएगा बात करते हुए, मैं अपने साईं की होके दबंग हो गई हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और निजामुद्दीन की बस्ती में ये कमाल हुआ, निजामुद्दीन की बस्ती में ये कमाल हुआ, मैं रंग खेल रही थी कि रंग हो गई हूँ। और भला हुआ कि मसाइल को फेंक फांक के मैं, भला हुआ कि मसाइल को फेंक फांक के मैं धमाल करने वालों के संग हो गई हूँ। मैं अपनी ज़ात के अंदर मलंग हो गई। बहुत शुक्रिया सर, सलामत रहिए। एक और गज़ल। सबका एहसान उठाने की ज़रूरत क्या है, सबका एहसान उठाने की ज़रूरत क्या है, साथ हो तुम तो ज़माने की ज़रूरत क्या है। और मसला दोनों का है, तय भी करेंगे दोनों, मसला दोनों का है, तय भी करेंगे दोनों, शहर को बीच में लाने की ज़रूरत क्या है। मसला दोनों का है, तय भी करेंगे दोनों, शहर को बीच में लाने की ज़रूरत क्या है। और दिल से तय करके किसी रोज़ अलग हो जाओ, दिल से तय करके किसी रोज़ अलग हो जाओ, छोड़ना है तो बहाने की ज़रूरत क्या है। बहुत अच्छे, फिर पढ़े। दिल से तय करके किसी रोज़ अलग हो जाओ, छोड़ना है तो बहाने की ज़रूरत क्या है। और वॉल चिड़ियों का तुम्हें क्यों नहीं अच्छा लगता, वॉल चिड़ियों का तुम्हें क्यों नहीं अच्छा लगता, झील में जहर मिलाने की ज़रूरत क्या है। और गोल चिड़ियों का तुम्हें क्यों नहीं अच्छा लगता,
झील में जहर मिलाने की ज़रूरत क्या है, और फूल को शोर मचाते कभी देखा है कमर, फूल को शोर मचाते कभी देखा है कमर, तुम हो खुशबू तो बताने की ज़रूरत क्या है। बहुत अच्छे और मसला दोनों का है, तय भी करेंगे तो दोनों। वाह, शहर को बीच में लाने की ज़रूरत क्या है। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम सामीन, ये थी मोहतरमा रेहाना कमर साहिबा। और हमारी खुशबख्ती है कि अमेरिका से जब भी वो तशरीफ़ लाती हैं वो जंग का दौरा ज़रूर रखती हैं, और ये ख़ास तौर पे मेरे लिए एजाज़ है कि वो मेरी दावत पे यहाँ पे तशरीफ़ लाईं। तो उम्मीद है आपको ये मुशायरा जो है ये बहुत पसंद आया होगा। लेकिन इस मुशायरे की एक अनोखी बात और है कि हम अपने जो सामीन हैं उनके तासुरात भी आपको सुनाएंगे। तो सबसे पहले मैं दरख्वास्त गुजार हूँ मोहतरमा अक्सा अरशद साहिबा से, जो अपने ख्यालात का इज़हार करेंगे कि उन्होंने मुशायरा सुना है, उनको कैसा लगा उनको। मोहतरमा अक्सा अरशद साहिब। सुबह ही हम बात कर रहे थे कि अगर दुनिया को देखना है ना खूबसूरत व्यू से, तो उर्दू अदब वालों से रब्ता करें। तो आज बहुत मुझे अच्छा लगा कि हमने सुबह ही ये बात की और इस प्यारी सी महफ़िल में हमें आने का एजाज़ मिला, और बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हैं और आप लोगों का, और आप लोगों ने बहुत अच्छा कलाम पेश किया। तो इसलिए आप लोगों का हम बहुत ज़्यादा शुक्र अदा करते हैं कि आप लोगों ने हमें इस महफ़िल में इनवाइट किया। और मैम रेहाना साहिबा, उनका कलाम जो था, जिनका उसका जो मतलब एक पॉइंट था ना, वो मुझे बहुत अच्छा लगा है कि ज़िंदगी का टर्न हम दोनों एक सफ़र में ही तय करेंगे, मतलब दोनों एक साथ तय करेंगे शहर में हमें आने, मतलब उसको लाने की ज़रूरत क्या है। तो वो शेर तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा है। तो और बाकी मुझे मतलब इस तरह नाम नहीं याद, लेकिन हबीब जामी साहब और इधर सर अब्दुल्ला साहब, तो इन दोनों ने भी बहुत अच्छा कलाम पढ़ा और बहुत अच्छा लगा। तो ये हमारे जंग का एजाज़ हैं, और इंशाल्लाह हमारा पाकिस्तान आप लोगों से ही मतलब तरक्की करेगा। और ये बहुत अच्छा स्टेप है कि आप इस तरह आगे लेके आ रहे हैं, क्योंकि पोइट्री बहुत सारे लोग लिखते हैं लेकिन उसको आगे लेके कोई नहीं आता, इन व्यूज़ को ज़ाहिर कोई नहीं करता कि हमारे व्यूज़ क्या हैं। तो इसलिए हम आप सबको अप्रिशिएट करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं कि अपनी उर्दू एक हमारी ये कौमी ज़बान है, और इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो इसलिए आप लोगों का शुक्रिया कि आप हमारी इस कौमी ज़बान को आगे लेके जा रहे हैं, इस चीज़ का भी आप। नाज़रीन, ये हमारी बड़ी खुशबख्ती है कि साइकोलॉजिस्ट ने हमारा साइकोलॉजिकल एनालिसिस करके रख दिया है, और उसमें वो हमारे हक़ में फ़ैसला हुआ है। तो ये उनका अक्सा अरशद साहिबा की बहुत बहुत मेहरबानी है। तो और अब देखते हैं कि दूसरी साइकोलॉजिस्ट जो है मैमूना नाज साहिबा, वो क्या हमारे हक़ में बयान देती हैं, या इस जो तकरीब है जो कि रेहाना कमर साहिबा की एजाज़ में मुनक़िद हुई है, उस बारे में उनके ख़यालात देखते हैं। मोहतरमा मैमूना नाज साहिब। मुझे पहली बार ना मुशायरा देखने का मौका मिला, और मुझे बहुत मज़ा आया सुनकर। डॉक्टर साहब ने स्टार्ट लिया है, उसके बाद बारी बारी आप सब लोगों ने अपना कलाम पेश किया, और सारा ही बहुत मज़े का कलाम था, जिसे सुनकर मुझे बहुत ही मज़ा आया। और मेरा दिल में ये शौक़ पैदा हुआ कि अब मैं भी थोड़ा उर्दू शायरी का मुतालिया करूं और उसे पढूं, ताकि मुझ में भी थोड़ा नॉलेज है और कहीं पे बात करने का मुझे भी शऊर आ जाए। बस, थैंक यू। नाज़रीन, ये बड़ी हमारी आज अच्छा दिन है कि दूसरी साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो उन्होंने भी हमारे हक़ में फ़ैसला दे दिया है, और ये बड़ा अच्छी बात है कि उन्हें भी ये मुशायरा पसंद है। उन्हें तहरीक हुई है कि इंशाअल्लाह अब उनमें बहुत टैलेंट है, लगता है कि वो भी अगली दफ़ा हमारी महफ़िल में अपनी गज़ल पेश करेंगी। तो अब हम एक ऐसी शख्सियत की तरफ चलते हैं कि वो जैसे कहते हैं किसी सारी उम्र जो है उनकी साहिलों पे गुजरी है, और इसलिए उनका नाम जो है मोहम्मद उमर साहिल है, और हर वक्त जो है वो
پانیوں کی طرف دیکھتے رہتے ہیں اور ساحل پہ آوارہ پھرتے رہتے ہیں، لیکن وہ جس چیز کی تلاش میں ہیں وہ ایک شفا کی تلاش میں پھرتے ہیں۔ ان کا ایک ہاسپٹل ہے، ساحل ہاسپٹل، جس میں وہ شفا بانٹتے ہیں ان لوگوں کو جو کہ نشے کے عادی ہو چکے ہیں۔ لیکن آج وہ دیکھتے ہیں کہ یہ شاعری بھی ایک نشہ ہے، تو وہ دیکھتے ہیں کہ یہ نشہ ان کو کیسا لگا، پسند آیا یا نہیں، وہ اس نشے میں مدہوش ہوئے یا نہیں۔ تو چلتے ہیں ڈاکٹر محمد عمر ساحل کی طرف۔ سب سے پہلے میں بہت شکر گزار ہوں جناب ڈاکٹر محسن میگھیانہ صاحب کا۔ ایز یوزول بہت بڑی بڑی شخصیات سے جب بھی ملنے کا موقع ملا ہے تو آئی ایم دا لکی ون، اس کی وجہ ڈاکٹر محسن صاحب ہی ہوتے ہیں۔ تو شیرومن نے بتایا تھا کہ پی ٹی وی کا میں واحد سامع تھا، تو تب بھی بہت بڑے شعراء تھے، سر کو بھی وہاں پہ انویٹیشن دیا گیا تھا پی ٹی وی کی طرف سے، تو سارے بڑے نام تھے جنہیں اپنا کلام پیش کرنا تھا، تو لکیلی ایک سیٹ خالی تھی وہاں پہ، ایک شاعر مس ہو گئے۔ تو جناب زاہد فخری صاحب نے ڈاکٹر صاحب سے کہا کہ یار ایک ایکسٹرا ہے بندہ آپ کے ساتھ، تو اس کو کیوں نہ لائیو بٹھا دیا جائے۔ تو ان کی وہ ویکنسی فیل ہو گئی اور میں پوری دنیا کے سامنے میں آ گیا، میری ہائپ بن گئی۔ تو اس کی وجہ بھی ڈاکٹر صاحب ہی تھے، ورنہ میرا کوئی کمال نہیں کہ مجھے انہوں نے وہاں پہ کوئی اس طرح سے آنر دی ہو۔ تو یہ لک تھا میرا سر کی وجہ سے، جیسے بہت بڑی شخصیات سے ملنے کا موقع مل رہا ہے، اور آج اسپیشلی ریحانہ قمر صاحبہ کے اعزاز میں آئی ریئلی اٹس پریولیج فار می ٹو بی ہیئر۔ میم جب بھی پاکستان آتی ہیں تو ان کا یہ بڑا پن ہے کہ ہمیں ٹائم دیتی ہیں، ملاقات کا شرف دیتی ہیں، اور اشعار کی دنیا میں، شاعرات کی دنیا میں واقعی میں ایک راجکماری ہیں۔ جس طرح سے وہ الفاظ کا خوبصورت پیرہن، جو الفاظ کو پیرہن دیتی ہیں، جو اس ترتیب سے وہ شاعری گاڑتی ہیں، وہ سچ میں کمال ہوتا ہے۔ ہمیں پڑھنے ہیں، مجھے اتنا شعر اچھا پڑھنا نہیں آتا، لیکن جب میں میم کی شاعری پڑھتا ہوں تو مجھے سچ میں بڑا مزہ آتا ہے۔ ہر شعر میں پورا وزن ہوتا ہے، بہت سادہ الفاظ میں اتنا خوبصورت انتخاب، اتنا خوبصورت، مطلب بارے معنی سے الفاظ کو چرانا اور ان کو ایک ردا کاری میں، ایک تخیل کاری میں، یا الفاظ کی وہ ان کو چن دینا، ایک لائن میں چن دینا، ایک ادا میں چن دینا، وہ فن اس راجکماری کو خوب آتا ہے۔ اور مجھے ان کی ساری شاعری بہت پسند ہے، لیکن راجکماری تو ان کی میری ٹاپ فیوریٹ ہے میری۔ اور سب سے پہلے جب بہت پہلے میں نے ان کا ایک شعر سنا تھا جو یہ ثابت کرتا ہے کہ یہ مغرور بھی ہیں، اور انہیں غرور ہونا بھی چاہیے اپنی شاعری پہ، کہ نظر انداز کرنے کی سزا دینا تھی ان کو، اس کو نظر انداز کرنے کی سزا دینا تھی تم کو، تیرے دل میں اتر جانا ضروری ہو گیا تھا۔ تو جتنی وہ خوبصورت لکھتی ہیں اس سے کہیں خوبصورت شخصیت کی مالک ہیں وہ۔ ان سے صرف شاعری ہی نہیں، جب ان سے بات ہوتی ہے تو میں بہت سیکھتا ہوں، مجھے بڑی مشکلات آسان لگنے لگتی ہیں، کہیں کہ پریشان ہوتے ہیں تو جیسے ابھی اکثر نے ان کے شعر کا بتایا کہ شہر کو بیچ میں لانے کی ضرورت کیا ہے، تو کب کہاں کیا سکھا جاتی ہیں وہ شاید انہیں بھی نہیں پتہ۔ ہم بہت شکر گزار ہیں میم، یو وزٹڈ ہیئر۔ اور فرحت طاہر ہمارے جھنگ کا بہت خوبصورت نام ہے، بہت نفیس لہجے کی نفیس انسان ہے، تو ان کی شاعری تو بڑی سادہ سی، اور فیس بک پہ تو ہم پڑھتا رہتا ہوں، ہماری ملاقاتیں بھی ہوتی رہتی ہیں۔ مدثر حبیب چھوٹے بھائی ہیں ہمارے، اور اپنی عمر سے کہیں بڑا لکھتے ہیں اور بہت خوبصورت لکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اللہ کرے زور قلم اور زیادہ۔ اور اب عامر عبداللہ ایک نام ہے جھنگ کا، بڑا نام ہے، تو ان کا تو خیر آج کل بہت بڑے ملکوں میں، زیادہ سارے ممالک میں ان کی وہ تشہیر ہو رہی ہے، ان کی شاعری کی ٹرانسلیشن ہو رہی ہے۔ تو آئی ایم اگین تھینکفل ٹو ریحانہ قمر میم، آپ سدا سلامت رہیں۔ اور ایک امریکن لیڈی، جب ایک نام آتا ہے امریکہ کی ہیں، اور تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، جب ہم انہیں ملتے ہیں تو ساری محبتیں، ساری چاہتیں، ایک مکمل پیکج جو ہے وہ ریحانہ قمر ہے۔ سو میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں آپ کا کوئی تعارف کروا سکوں، سو شی از دا اونلی ون، دیٹس ریحانہ قمر۔ تھینک یو۔ ساتھیوں، جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ جہاں مجید امجد کا نام آتا ہے وہیں سے جھنگ کا تعارف ہوتا ہے، اور ہماری آج بہت ہم خوش قسمت ہیں کہ آج ہمارے ساتھ ان کی بھتیجی ہیں پروفیسر نوید صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں، اور وہ تعلیم سے، تدریس سے وابستہ رہی ہیں، پروفیسر رہی ہیں،
اور آج کل وہ آزادی میں کہتا ہوں ریٹائرمنٹ جو ہے نا وہ سرکار سے آزادی کا سما ہوتا ہے اور وہ آزاد زندگی گزار رہی ہیں, اپنی مرضی کی زندگی گزار رہی ہیں. ابھی جو مجید امجد کو بعد از مرگ جو ہے ستارہ امتیاز دیا گیا ہے تو بڑی خوشی ہوئی ہے, آلدو کہ یہ بعد از مرگ ایوارڈ ہے, لیکن چلیں ریکگنیشن تو ہوئی تو اس کے لیے ہم ان کو بھی مبارکباد پیش کرتے ہیں, پورے جنگ کو, پورے پاکستان کو اور پوری ادبی دنیا کو. تو آج کی اس مختصر سی نشست کے بارے میں محترمہ پروفیسر نوید صاحبہ کیا کہتی ہیں, آئیے ان سے ان کی زبانی سنتے ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, ڈاکٹر محسن مگیانہ صاحب, آپ کا بہت شکریہ. آپ نے ایک منی سی محفل سجا کے تو مجھے ایکسائٹ کر دیا کہ میں کچھ کہوں. گو کہ میں ادھر کسی بھی شاعر کو نہیں جانتی سوائے آپ کے, تو پھر بھی میں نے جو سنا ہے بہت اچھا لگا ہے. خاص طور پہ میڈم ریحانہ قمر صاحبہ کا کلام مجھے اس لحاظ سے بہت اچھا لگا ہے کہ انہوں نے امریکہ اور پاکستان کو ملا دیا, ایک روڈ کے تھرو ملا دیا, اور مجھے بہت اچھا لگا. ہر ان کا سٹیپ بڑا اپریشیبل تھا. اور ساتھ ہی میں محترمہ فرد طاہرہ صاحبہ کی بھی شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے اتنا اچھا دوڑا پہلے سنایا جو ہمارے جہاں کی پہچان ہے. اور مجھے اس چیز میں تھوڑی کمی محسوس ہوتی ہے کہ ہمارے جہاں کی لینگویج جو ہے اس کو اس لحاظ سے ابھی اکٹھا نہیں کیا گیا جس طرح کرنا چاہیے. جیسے میں نے ایک جگہ پہ پڑھا تھا کہ دوڑے ہوتے تھے کسی زمانے میں. اب میں ذرا پرانے ٹائم کی ہوں نا تو مجھے دوڑے وہ بڑے یاد آتے ہیں جو کنویں پہ بیٹھ کے اور وہ کرتے. جب امجد صاحب کی میں شاعری دیکھتی ہوں تو اس میں بھی کنواں اور اس طرح کے سارے جو حوالے ہیں وہ آتے ہیں اور وہ بڑے لطف دیتے ہیں, بہت اچھا لگتا ہے. تو اسی طریقے سے سر عبداللہ صاحب کا کلام بھی بہت ڈیپ تھا, بہت اچھا تھا. آپ کا تو بہت ہی, آپ تو بالکل جامی صاحب تو بالکل ینگ سے ہیں, میں سمجھتی تھی کہ شاید کوئی بہت ایجڈ شاعر ہے. تو فرسٹ ٹائم دیکھنے کا موقع ملا اور بڑا اچھا لگا مجھے, بہت اپریشیبل ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس طرح کی محفلیں بہت زیادہ ہونی چاہیے, کیونکہ یہی تو ادب کے جلا کے لیے, ادب کو بڑھانے کے لیے بہت ضروری ہے. اگر یہ نہیں ہوں گی تو ادب رک جائے گا, کیونکہ آپ اگر اپنے خیالات دوسرے کو نہیں سمجھائیں گے, نہیں دکھائیں گے تو یہ کیسے آگے چلے. دیا تو اس طرح جلنا ہے, دیا سے دیا جلے گا اور روشنی ہوگی. تو جہاں تک امجد صاحب کے ایوارڈ کیا تو میں واقعی آپ کی شکر گزار ہوں. مگر مجھے اس بات پہ بہت خوشی ہے کہ ایکسپلور کیا ہے امجد صاحب کو آفٹر 35 ایئرز آف ہز ڈیتھ, یعنی کہ اتنا تو وہ شاعر ڈیپ تھا کہ اس کو 35 سال لگے ہیں آپ کو ڈسکور کرنے کے لیے. تو چلیں, دیر آئے درست آئے, اور ہوپ فار دا بیسٹ. اور انشاءاللہ آئندہ بھی اس میں بہت ترقی ہوگی, اور امید کرتی ہوں کہ یہ سب شاعر جو ہیں اسی کو لے کے, اسی کو بیس بنا کے آگے چلیں گے تاکہ ہمارے جہاں کا نام جو ہے بہت اونچا جائے. اور اسی کے ساتھ میں سب کا, میڈم ریحانہ قمر کا, تمام شعراء کا شکریہ ادا کرتی ہوں, اور خاص طور پہ ڈاکٹر محسن مگیانہ صاحب کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے سرپرائز میں یہ دے دیا, یہ خیالات جو ہے سرپرائز میں دے دیے. مجھے نہیں پتہ تھا کہ اس محفل میں مشاعرہ, میں مشاعروں میں بہت کام گئی ہوں, مجھے مشاعروں کا پتہ ہی نہیں ہے. میں کالج زمانے میں بس وہ جو کالج میں ہوتے تھے اس کو, پھر یہ ہے کہ مجھے ابھی نہ کوئی رولز اینڈ ریگولیشن پتہ ہے. اور بہرحال بہت شکریہ, آپ نے میری بات سنی اور مجھے بہت اچھا لگا. اور ینگ جنریشن کا تو اور بہت اچھا لگا کہ انہوں نے بھی بہت اچھا کام شروع کر دیا. تو بہرحال بہت شکریہ, بہت شکریہ. ناظرین, آپ نے تاثرات سنے, جو ہمارے سامعین تھے ان کے تاثرات بھی آپ نے سنے. ہم میں سے ایک سامع جو عبدالرؤف صاحب ہیں, وہ بھائی ہیں ریحانہ قمر صاحبہ کے, اور وہ بڑے شرمیلے ہیں. وہ کہتے ہیں جی میں نے سامنے تاثرات نہیں دینے, لیکن وہ مسکرا رہے ہیں, اور اس سے ثابت ہوتا ہے کہ
انہیں بھی یہ مشاعرہ جو ہے وہ بہت اچھا لگا ہے, بہت پسند آیا ہے. اور اسی طرح سے آپ سے بھی توقع ہے کہ آپ کو بھی یہ ساری جو یہاں پہ شاعری پیش کی گئی ہے بہت اچھی لگی ہوگی, اور اگر آپ کو یقیناً اچھی لگی ہے, میرا ایمان ہے, تو آپ اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا. اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل جو ہے جس کا ٹائٹل ڈاکٹر محسن مکھیانہ ہے, آپ نے اس کو سبسکرائب نہیں کیا تو اب ضرور کر دیجئے گا. آپ کی بہت مہربانی, بہت شکریہ. اللہ حافظ.